Shall we move forward? Yes, sir. Our happy classroom. What do you mean with a word known as happy? Before starting with my definition, can anybody tell me what do you mean with the word happy? Enjoyable. The other one, to the synonym? Joyful. Third is? Cheerful. Then excitement. तो आपने मुझे 4 words बताए. One is Diksha. That means you are not there in the class. Joyful. है ना? It is joyful. Lakwinder sir, the second one after joyful. Excited. Very good. Second is excited. Rajiv, what is the third word used over here for the definition of happy classroom? Cheerful. मतलब ये नहीं हम चेयर पे बैठे हैं फुल हो गए. It is a cheerful. It is into a different sound of happiness. And the last, Aman, the sleeping beauty. Tell me. नहीं याद है? क्यों नहीं दिया ध्यान? ध्यान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? बताइए अफशीन. एक्साइटमेंट तो हम यूज कर चुके हैं वर्ड. दैट मीन्स यू आर नॉट अटेंटिव. एक्साइटमेंट हमारे लखविंदर सर ने बोला है. नहीं, इंटरेक्टिव वर्ड ही नहीं बोला है. हमने चेयरफुल बोला है, हमने जॉयफुल बोला है, हमने एक्साइटमेंट बोला और लास्ट क्या है? हमने लास्ट बोला था cheerful. So let's start with the thing over here. Everyone please. Let's start over here with the thing. Our happy classroom. Being a teacher, when I enter into the class, how I should be and how my interaction with the student should be. Okay? So these are the parameters what we face sometimes. There are many parameters before entering into a class. Okay? So we will discuss to that also. Firstly, let's come up. What is a happy classroom? The first is creating a positive environment. What do you mean by positive? सकारात्मक के अलावा अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट. आप लोग फील्ड में एक हैप्पी फील्ड कैसे बनाते हैं कि वो एक अच्छा गेम बन सके? तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? बोथ ऑफ द पीटीआईज. वो तो नीचे का पढ़ लिया अपने आप जो है मीटिंग हुए. नहीं क्रिएटिव नहीं है. पॉजिटिव क्या हुआ? पॉजिटिव मतलब ये हुआ पॉजिटिव एनवायरनमेंट जिसमें देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग. If I am happy, I'll enter into the class. I will give my 100% to a student, and the student will take 80% from me into a what way? Into a joyful, cheerful, excitement towards आपने मुझे बताया. Next is facilitating the growth. If I am what? I am happy. I'll create a positive environment, and after positive environment, I can facilitate the growth. मैं बच्चों की ग्रोथ को क्या कर दूंगी? Enhance. ग्रोथ बच्चे की तभी आती है बच्चा कहता है मैथ इज वेरी बोरिंग, बायो इज आउट ऑफ द स्टॉक, केमिस्ट्री रात में पढ़ी दिन में सफा. इट इज लाइक दैट ना. बट इफ आई एम हैप्पी, इफ आई हैव अ कंटेंट, आई विल बी हैप्पी. And if I'll be happy with the content, I can give and facilitate the growth of a child. And last is, if there will be a growth, there will be a proper development with the peer factor. है ना? एक peer enhancement हो जाती है. बच्चे की growth जो होगी उसकी development में दिखेगी. When it comes to what? जो 20 and 80% वाला जो हम करते हैं out of 100. 20 is for internal assessment and 80 is for pure. ठीक है? Let's move to the next one. Okay, stop. Here it means 3 W's and H. 3 W पे वर्क करेंगे और एक H पे. 3 W मेरा क्या है? What, who and what. ठीक है? पहले वाले पे हम डिस्कस कर चुके हैं. What is happy classroom. ठीक है? Happy
classroom, आपने उसका word out ले लिया, creating a positive environment, facilitating the growth and development. Now next term is who should work on making it happy. कौन कर सकता है कि वो क्लासरूम जो या फिर वो वर्क जो है बच्चे के लिए एक हैप्पीनेस का क्या बन सके जरिया. ओके, फॉर दैट इट इज द 3 things what I have written. One is teacher, counselor and parent. Why I have kept the parent in the last? Why I have not taken the parent as first? Rajiv, why I have not taken parent as my first annotate? Happy के बाद मैंने teacher क्यों लिखा, parent पहले क्यों नहीं लिखा? Because मैंने कैसे क्लासरूम डाला है, हैप्पी वर्ड डाला है सिर्फ सब और 3 चीजों को यूज करा है. तो मैंने टीचर को why have taken teacher as a first? Because students spend their most of the time with the teacher. Yes, correct. Because students they are with us for 6.5 hours, and if it is a day boarding, it will be 8 hours, and when it comes into a boarding, then you have to be into the 24 hours with the one teacher. Second is a counselor. What does a counselor stand for? Counselor का मतलब क्या है यहाँ पे? Counselor Look. Counseling की definition क्या होती है? What is the definition of counseling? What does counseling signify? analyze someone's problem and discuss. Very good. It is onto a analytical way. Second is the counselor. Counselor is the one when we talk about counseling. Counseling means to analyze. Analyze means onto the peer factor of a student behavioral way. If a behavior is good, अच्छा है behavior उसका, तो वो क्या करेगा? If he is not mischievous, if he is not notorious, the one who have a good behavior, the one who can come up with a class. So what they will do? They will listen to you very politely, very sharply, and they will come up with your contents. ठीक है? If we know we have special children, we never say to any of the child in a class indicating he is the problematic, he is notorious, he is mischievous, he is a silly child. These are the words we use. But what? It gives a downfall on the morale. Morale means बच्चे का ethics और उसका mind का भी वो होता है, जब उसका एक mind way around होता है तो उसको लगता है कि मैं सबके सामने क्या हुआ? I am feeling insulted. है ना? Counselor is the one who analyze the situation of the special ones. Who analyze the situation of the special ones, and what they do, they help the child to cope up with the teacher as well as to the class and to the other students in the class. Third is the parent I have taken. Why the parent is last? Because like when we goes for the PTM, we tell the parents are there. We tell the parent 6.5 hours he is with me or she is with me, she is doing well. But I don't know when I give the homework, when they turn up to the class, I don't know what is happening in the house, what is there, how much time he or she is delivering for the studies. They are not taking up with the homework, they are not taking their assignments, they are not doing the revision. So parent has to monitor properly at home. Monitoring does not mean into a molesting one, into a harassment, into what? Punishments. Modeling, counseling of a parent also requires into a positive way. हमें पता है कि जब हम लोग क्या थे, when we were small, and if I used to do any of the mischievous things in the class, it was like I give you my example. Whenever the teacher enters, Anshika George is out. Why? Because I was naughty, and I used to disturb the class. But at that time there was no work around onto me that how can I be counseled and sit in the class. But it was like scenario build up. She is the chatterbox, she is the talkative, she is the disturbing element, she has to be out. But parents के साथ क्या होता है? The teacher with the parent interaction क्या होता है? हम कभी harsh हो जाते हैं. हम parent को एक polite way में उस बच्चे का क्या नहीं कर पाते हैं? एक क्या नहीं दे पाते? Status. We get something. अगर वो parent अंदर enter भी हो रहा होता है ना रूम में, हमें पता है इस बच्चे का parent है, तो हमारी frownings it comes up. हमारे heart, हमारा mind क्या करता है? एक
मोटिवेशन मिलेगा। तो हम पेरेंट को काउंसिल करने की जगह हम क्या करते हैं, पेरेंट को उसकी डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज बता देते हैं। इट्स बेटर जब हम लोग कभी कोई एक आप इंटेलेक्चुअल पर्सन को सुनोगे और वो आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, तो व्हाट ही सेज, व्हाट शुड आई टेल यू फर्स्ट, एज अ गुड पार्ट और अ बैड पार्ट? गुड पार्ट होता है ना कि मैं आपको पहले क्या बताऊं, गुड पार्ट बताऊं या बैड पार्ट? एवरीबडी along with me as a human with a psychological brain, we always say as a good part. Nobody is ready to listen first as a bad part. तो सेम थिंग इज दिस, अगर हम पेरेंट को उसका गुड पार्ट बता के फिर हम उसको बैड पार्ट पे उसको लेकर आते हैं, तो पेरेंट क्या होता है, जो उसके दिमाग में भी जो उस बच्चे के अपने बच्चे के लिए बन रहा होता है, दैट एंगरनेस, एग्रेसिवनेस, उससे क्या हो जाता है, उसका थोड़ा डाउन हो जाता है। सेकेंडली, पेरेंट हैज टू मॉनिटर द स्टूडेंट। Yesterday I went to the Kent. I was having a dinner with my husband and my son. मैंने वहाँ पे देखा कि कैंट में क्या था, 5-6 students along with 2 girls. They were roaming around. They were roaming around and they were sitting and they were having that snacks and all that. अब क्या है, मॉनिटरिंग काम है पेरेंट की आफ्टर 8 काम है मॉनिटरिंग। हम तो स्कूल में उसको मॉनिटर करके उसको एथिक्स दे रहे हैं, उसको डिसिप्लिन एटिकेट्स as well as the first part we are giving to guidance. So where is the other monitoring part? So that also has to be done with the student. ठीक है, और जब पेरेंट उसको मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करके if he is doing into a positive aspects, what will happen, जो कि स्पेशल होगा will come up into a good way. ठीक है, अब हम इस पे होल्ड करते हैं। चबिता मैम, where is it? ठीक है, इधर देखिए, सब लोग सुनिए। What makes you happy when you enter the class? ठीक है, नहीं बोलना है, ये पहला वाला लगा है, what makes you happy? What makes you happy when you enter the class? Unhappy है सब। कुछ को अनहैप्पी मिला है, कुछ को हैप्पी मिला है, कितनों को हैप्पी मिला है और कितनों को अनहैप्पी मिला है? वेरी गुड, राइट द पॉइंट्स। एक क्वेश्चन है what makes you happy when you enter the class। दूसरा क्वेश्चन है जो ऑपोजिट में मिला है, what makes you unhappy when you are there in the class। एक वो है जब मैं क्लास के अंदर आ रही हूँ और मैं हैप्पी हूँ, या फिर मैं क्लास के अंदर हूँ और मैं जो हूँ अनहैप्पी हूँ। तो आप इसमें मुझे 5 पॉइंट्स लिख के दीजिए जल्दी से, जिसको जो मिला है वो 5 पॉइंट्स लिख के दीजिए। 5 पॉइंट्स लिखे हैं सर, हिंदी में भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर के ऊपर अपना नाम कोई नहीं लिखेगा। पहला पेज निकाल ले और छविता मैम को सबमिट कर दे। आपको पता है ना सबको कि किसने हैप्पी लिखा है, किसने अनहैप्पी लिखा है, ठीक है ना? खोलेंगे ऐसे निकाल दो। क्या हुआ हमारे फर्स्ट पेज सर, चाहे आप लिख पाए नहीं लिख पाए कोई इशू नहीं, हो गया मैम सर का रहेगा। सबको एक ही पेपर दे दीजिए। अब जिनके पास हैप्पी है इधर और जिनके पास अनहैप्पी है वो है इधर, सही है ना? जो पेपर में मिला है, हाँ अनहैप्पी ना, हो गया? ठीक है, आप खड़े होइए और 5 पॉइंट पढ़िए। पहला क्वेश्चन पढ़िए और फिर 5 पॉइंट पढ़िए। लेट्स बी अटेंटिव, लेट्स बी अटेंटिव। सामने सामने प्लीज कम फॉरवर्ड।
What makes you unhappy when in the class? Write 5 points. First one is हमारे द्वारा दिए गए कार्य को छात्र समय पर नहीं करता है। सुना ना? हमारे द्वारा दिया गया whatever work we assign, it is not completed by the student. ठीक है? चलो सेकंड मैम प्लीज प्लीज। नेक्स्ट, कक्षा के दौरान सीधा नहीं बैठता है। कक्षा के दौरान he is a disturbing element. The gesture is not proper. This is called as gesture. The gesture is not proper. Third, अपनी पुस्तक तथा आवश्यक सामग्री नहीं लाता है। yes, अपनी पुस्तक और सामग्री नहीं लाता है। नेक्स्ट, हमारा पढ़ाना उसको समझ में नहीं आता। हमारा पढ़ाना समझ में नहीं आती। बत्ती बोल है किसका दिया हुआ है ये? यस, क्लैप हैंड्स फॉर रंजिता। ठीक है, अब इसका समाधान रंजिता मैम खड़े हुए पहला पढ़िए पॉइंट प्लीज कम फॉरवर्ड मैम प्लीज। अब इसका सलूशन जो है हम लोग निकालेंगे और आप भी निकालेंगे। पहला, हमारे द्वारा दिए गए कार्य को छात्र समय पर नहीं। ठीक है, आपके द्वारा छात्र को कार्य दिया गया, उसने नहीं करा समय से। अब बताइए ऐसी मैं क्या स्ट्रैटेजी अफोर्ड कर सकती हूँ बीइंग अ टीचर क्लास में जाके कि जो वो बच्चा जो काम नहीं कर रहा वो काम करना शुरू करे। सबसे पहले जब हम क्लास में जाएंगे, जिस बच्चे ने काम नहीं किया है उसके पास जाकर बोलेंगे कि बेटा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं तो आपको क्लास में सबसे अच्छा समझती थी, मुझे उम्मीद था आप सबसे पहले काम करके दोगे, अगली बार ऐसा ना हो। मुझे आपसे उम्मीद है। जब आप अंदर से खुश नहीं है क्लास में जा रहे हो तो बच्चों को कैसे पूछेंगे? तो क्लास में जाते टाइम खुश नहीं, क्लास के अंदर खुश करें। सर आप चाहे क्लास के अनहैप्पी हो पर आपको बच्चे पे ये शो नहीं करना नहीं होता नहीं है। नहीं मैम, क्वेश्चन आप लोग नहीं समझे। क्वेश्चन भी हैप्पी और अनहैप्पी में क्वेश्चन डिफरेंस है। व्हेन यू आर इनसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, एंटरिंग द क्लास सिर्फ हैप्पी वाले में है, लेकिन इनसाइड द क्लास के अंदर अनहैप्पी है। तो पहला इनका सही था, लेकिन अगर मैम अगर वो बच्चा जो है ब्रिलियंट नहीं है, जैसे आप क्लास में अच्छे थे अब वो मेरी तरह डिस्ट्रैक्टेड चाइल्ड है, फिर आप क्या करेंगे मेरे साथ? तो मैम उसको सुधारने की कोशिश तो करेंगे। आप मेरे लिए ऐसा एक सुधार बताइए जो आप मुझे सुधार सकेंगे। मैं उसको प्यार से अपने पास बुलाऊंगी, उससे साथ बैठ के काम कराऊंगी कि बेटा आप मेरे पास बैठ के काम कीजिए, मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे किया जाता तो ये क्लास में होगा, क्लास के बाहर होगा? है। ये क्लास में ही होगा, ताकि जो और बच्चे नहीं करके ला रहे हैं वो भी सीखें। तो फिर बाकी 35 स्टूडेंट्स उस टाइम में क्या करेंगे? अगर मैं एक ही टाइम पे 35 मिनट उस बच्चे पर फोकस कर दूँगी, फिर बाकी बच्चा क्या करेंगे? बाकी बच्चा उसी को देखेगा जो वो कर रहा है। तो ये देखने में फिर वो इसमें गई क्या मतलब कॉलर्स खड़े हो गए, देखा मैम की बात नहीं थी और मैम का मेरे पे बहुत बड़ा हाथ है, तो मैम की तो फेवरेट चाहिए मैम के साथ आ सकते हैं। यस, मैम ने उसको सुधार दिया, चाहे मैंने 25 बच्चों के सामने बोल दिया आई एम दी फेवरेट ऑफ माई हिंदी टीचर रंजिता मैडम। अब रंजिता मैडम जो बोलेगी ना सबसे पहले मैं कर देगी, है ना? तो हैप्पी क्लासरूम वो होती है जब मैं बच्चे को खड़ा करके उसे क्लास से बाहर ना निकालूं, उसको मैं पनिशमेंट पीछे ना दूं, प्लस बल्कि मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू इज टू काउंसल अ स्टूडेंट इनटू अ गुड वे अराउंड। अगर वो पैम्पर्ड होकर आपका काम कर रहा है, ट्राई टू हैव अ पैम्पराइजेशन बट नॉट टू अ लिमिटेशन। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अनहैप्पी, अनहैप्पी हो गया, सिट डाउन। हैप्पी किसके पास है? ठीक है, आइए मैम पढ़ के बताइए। अब ये सुनिएगा ये किसने बताया है? क्लास में अधिक बच्चे देखकर मैं खुश हो गई। हैप्पीनेस में बच्चों को अच्छा व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। कौन है ये? मैं खुश हो गई, लाइब्रेरी में मुझे देखी गई क्लास में खड़े हुए बेटा प्लीज आइए। क्लास में अधिक बच्चे देख के मैं बहुत खुश हो गई। अधिक क्या हम लोग अधिक बच्चे देख के खुश हो जाते हैं? हो जाते हैं, क्यों होते हैं? अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या जो बच्चे हैं क्या पढ़ाए, कोई अच्छी संख्या आई क्लास में वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, आप लोग का व्यूज़ ये है कि फुल स्ट्रेंथ आई है, पढ़ाना अच्छा लगेगा। क्या हमने उस वे में सोचा फुल स्ट्रेंथ क्यों आई क्लास में? फुल स्ट्रेंथ Maybe our class is so interactive. यस, वेरी गुड, क्लैप एंड फॉर रचना मैम। अरे जोर से बजाइए ना, काफी कहते हैं।
देखिए जब एक एक क्लास उसकी बच्चे की इंटरेस्टिंग होगी तो जो बच्चा घर पे भी बैठेगा, जब उसको पता चलेगा क्लास पूरी फिलअप, तो इंटरेस्टिंग तब होगी व्हेन आई एम हैप्पी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम जब वेरी गुड, थैंक यू मैम, फोटो में थैंक यू मैम। जब हम क्लास में जाते हैं कभी कभी हो जाता है प्रिंसिपल ने बुलाया, इसलिए मीटिंगें खत्म हो गई हैं। नहीं जनरली बता रही हूँ, इवन व्हेन आई वाज अ टीचर हो जाता है। प्रिंसिपल ने बुलाया, काम इतना दे दिया या जो काम मैं नहीं कर पाया या कर पाई तो उसके लिए आज मेरी क्लास है। अब मैं चिड़ चढ़ा के आऊँगी क्लास में, एक वो मुझे साउंड ऑफ अनहैप्पीनेस एंटर करेगा। दूसरा क्या है? घर में जब हम लड़ाई करके आते हैं, घर का स्ट्रेस लेकर आते हैं, तो भी फैमिली टेंशन्स होती हैं, नियर बाय टेंशन्स हो गई, तो दैट ऑल्सो इफेक्ट्स माय क्लास। ठीक है, बच्चा क्लास में बैठा है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक इफ इट इज नेसेसरी फॉर यू टू वर्क ऑन हैप्पी क्लासरूम। अब आए हम इस बात पे, हैप्पी क्लासरूम। सबको एक दूसरे के व्यूज पढ़ने को मिल गए, बाद में आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसका व्यू था, ये किसका व्यू था। वी शुड नो ईच अदर्स व्यूज। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक इट इज नेसेसरी फॉर द वर्क ऑन हैप्पी क्लासरूम। क्यों नेसेसरी है कि हम हैप्पी क्लासरूम को अपने उसमें वर्कआउट करें? व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट सुबह से बैठा होता है, सोचता है 4th पीरियड मेरी मैथ्स क्लास लग रही है ना। अब मैथ्स टीचर आया, मैथ्स टीचर जो है ना, एक टीचर है जिसका मैं बताऊंगी कि मैंने एनालिसिस करी। बच्चा खाने से मारा, आपस में दूसरे को टीप दे रहा है, उसने उसकी कुर्सी खेलती है गिर गई, है ना, लिंगुअल्स गलत हो गई। अब क्या है, आया कंटेंट तरीका धड़ाधड़ पढ़ाया, ये करा बेटा, वे रोटेड डाउन इन द डायरी एंड ही फिल्ड ऑन कंटिन्यूअसली चला गया। हमें जब क्लास में आते हैं वी शुड नॉट बी स्टिक टू द कंटेंट। When we enter into the class, we should have a contact with the students. 30 बच्चे means 30 बच्चे, they are sitting for your lecture desperately. They should not take it as a boring. Desperately तभी होगा जब आप बच्चों के साथ interact करेंगे, बच्चों के साथ कुछ ऐसे skills निकाल के लाएंगे जिसमें बच्चा happy रहेगा। जैसे कि मैथ्स हो गई, अगर मैथ्स में अगर मैं पढ़ाती रहूँगी तो आर्ट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम आज बच्चों को मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं क्लास में जाऊँगा, बच्चों को मैथ्स से मॉड्यूलेशन करा दूँगा, मॉड्यूल्स फॉर्मेशन कराऊंगा, या बच्चों से कहा कागज निकालो, जहाज बनाओ और देखो उसमें कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं, बोर्ड बनाओ कितना ट्राइंगल आ रहा है, कितना क्या आ रहा है। अब बच्चे के वो एक्टिविटी हो गई, अब बच्चे ने एक्टिविटी में ट्राइंगल बना लिया, जहाज बना लिया, जहाज में भी बनता है ना ऑर्बिट, तो आपने बच्चों से फिर बोलना है कि देखो अब ये है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे या पैरीमीटर व्हाटएवर इट इज। तो बच्चा आपके साथ क्या होगा, साउंड ऑफ इंटरेक्शन, साउंड ऑफ हैप्पीनेस। और फिर उसके बाद जैसे मैं बहुत खिसियाई हुई हूँ, सब कुछ है, पढ़ाई को छोड़ दी, लेकिन बच्चे के लिए आप कोई ऐसा चीज़ ले आइए जैसे कि वो बच्चा बाद में प्रिंसिपल रूम या मैनेजमेंट या उसका पेरेंट आपके साथ पीटीएम में कंप्लेंट ना करे कि वो फलाना टीचर है, वो क्लास में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है। अब पेरेंट को क्या पता कि मैं किस साउंड में उस क्लास में एंटर हूँ, तो मुझे उस क्लास को कभी भी ऐसा साउंडलेस क्लास नहीं बनाना है। बच्चा अगर उस दिन आया है तभी आपका बच्चा जो होगा इनके अनुसार खुद आप लोग खुश हो जाएंगे। जब बच्चा 100% है, आज मेरा दिमाग खराब है लेकिन मैंने बच्चे को क्लास दी, ठीक है। लास्ट इज हाउ शुड वी डू इट। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं सर, कम टू द नेक्स्ट वन आइए। हाउ शुड वी डू इट। आई गेस दिस इज नॉट बोरिंग। नहीं सर ऐसे मत सोचिएगा कि मुंह में हम थक गए। चलिए सर इसको आगे करिए थोड़ा सा। एक्चुअली माय साउंड इज देयर इन दिस, क्योंकि मैंने साउंड को अपना म्यूट कर दिया। आई हैव टू मोड इट ऑन दैट ना प्लीज। हाउ शुड वी डू इट। बात कर चुके स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, बी अ गुड लिसनर। बच्चों की भी सुनिए, बच्चा आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्या पता मुझे सब्जेक्टिव पॉइंट पे मेरी ही क्लास में मुझे को बता रहा है कि मैम मुझे या सर मुझे सब्जेक्टिव
प्रॉब्लम हो ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बच्चों को ना सुन के मैं अपने चीज़ों को बढ़ाती जा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ, तब भी वो एक हैप्पी क्लास में फॉर्म अप नहीं हो पाएगा। सेकेंड इज यूज इंटरेस्टिंग लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। हम या तो नॉर्मल वे में पढ़ा देते हैं या हम कुछ एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में यहाँ पे वर्ड किस तरीके से आ रहा है कि मैं कोई एग्जाम्पल लेके चली गई है ना, या मैंने अपनी क्लास को किसी मूवी के वे में उसको ढाल दिया है ना, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चे को कर सकती हूँ। दूसरा, लैंग्वेज टुवर्ड्स अ स्टूडेंट शुड बी इनटू अ गुड वे। अबे व्हाट नो vernaculars, है ना, यू आर टोटली अ चीप फेलो, यू आर दिस सिली चैप, है ना, हम वर्ड्स यूज करते हैं तो हमारी लैंग्वेज भी जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिपीट एंड क्लैरिटी व्हाट द चाइल्ड सेज। चाइल्ड की क्लैरिटी में रिपीटिशन होना चाहिए, चाइल्ड आपसे क्या कह रहा है। अगर आपके पास 5 बच्चे खड़े हो जाते हैं 70 बच्चों में से कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है ना, तो आप चाइल्ड के लिए क्लैरिटी को डेवलप करें। आप सोच लें कि चलो आज का लेक्चर मैं कर दूंगा, इट विल बी अ पेन एंड अ बर्डन टू अ टीचर बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। लेकिन क्या है, अगर मैं उसकी क्लैरिटी के और उसकी रिपीट के लिए मैं अपने आप को भी रिपीट करती हूँ, मैं अपने कोई सब्जेक्ट को रिपीट करी हूँ, कोई टॉपिक को रिपीट करी हूँ, इट इज नॉट अ बिग टास्क। कम टू द नेक्स्ट वन सर, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। ओके स्टॉप सर। अब क्या जो ऊपर है 2 चीजें लिखी हैं और इज इक्वल टू द साइड लगाई, क्या लिखा है, योर इंटरेक्शन इज इक्वल टू चाइल्ड। अगर मेरा बच्चे के साथ मेरा इंटरेक्शन है तो वो चाइल्ड की डेवलपमेंट में एनहांसमेंट करे, ठीक है। तो पहला क्या है, अगर मैं कोई भी इंटरेक्शन कर रही हूँ, पहली बात जो मेन होनी चाहिए वो होनी चाहिए एनवायरनमेंट ऑफ रिलेशनशिप। मेरा आपका इंटरेक्शन नहीं होगा जब तक मेरी और आपकी रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेगी, और जब रिलेशनशिप डेवलप करती है तो रिलेशनशिप के ऊपर एक आके बैठ जाता है, टी फैक्टर बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रस्ट। बच्चा आप पे इतना ट्रस्ट करेगा कि वो आपके अनुसार ही चलेगा। जैसे किंडरगार्टन, अगर हम बात करें किंडरगार्टन की, किंडरगार्टन में क्या होता है, अगर मैं उसको 2 की स्पेलिंग बता रही हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ 2, सुनिएगा, ऑल बिकॉज ऑफ 2 दैट पर्सन, 2 की स्पेलिंग बताई, लेकिन मैंने उसको बताई TWO, समझ रहे, TO2 भी होता है और TWO भी होता है, क्या होता है, वेरी गुड, यू आर देयर इन द क्लास, दैट इज 2 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2, ठीक है, 2। आप घर पे गए, मम्मी ने कहा अरे ये तो तेरी टीचर ने बहुत गलत लिखा है, सर्कल लगा सर्कल, मम्मी ने प्यारा सा नोट लिख दिया, लव लेटर, डियर टीचर दिस हुआ है, आप प्लीज करेक्शन सही से करें, बच्चे को सही पढ़ाएं। बच्चा मम्मी से फाइट कर रहा है, नहीं, यहाँ पे TWO2 आएगा, TO2 नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। And how the trust has developed? Because of that interaction. और interaction से क्या हुआ, हमारी environment of relationship. And I know nobody will teach us TWO2, but it is just an example. ना, please. Step of 9 class. Sentence over here. Social interaction plays a key role in how the children learn to. अगर मैंने उसके साथ बहुत अच्छा सोशल एनवायरनमेंट बनाया है तो उसका सोचने का भी नजरिया बदलेगा। सेकंड, रीजन, उसकी रीजन देने में भी बदलेगा। मैम आज मेरे घर में ये हो गया था, जब आपकी उसके साथ एक लर्निंग और थिंकिंग डेवलपमेंट होगी तो उसका रीजन में भी चेंज ओवर आ जाएगा एंड ही विल बी देयर विद यू, ठीक है। एंड थर्ड इज द लास्ट इज द कम्युनिकेशन। वी आर स्ट्रिक्ट, आई नो, एंड वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारी स्ट्रिक्टनेस से बच्चा डरता है, बट स्ट्रिक्टनेस उस पार्ट तक होनी चाहिए जहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो, बट वी नीड टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। और बाकी क्या है, व्हाट आर द अदर थिंग्स अराउंड ऑल एस्पेक्ट्स टू इफेक्टिव डेवलपमेंट, वी शुड बी इंटेलेक्चुअल। अगर हम इंटेलेक्चुअल है हर बच्चे के लिए रखेंगे और एक इंटेलेक्चुअल वे में देखेंगे तो एवरी
everybody will be happy. Second is social. What we have discussed? Emotional. We have to be emotional. हमें बच्चों में अपनी इमोशनैलिटी, कोई बच्चा हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको उस इमोशनल वे में भी हमें वर्कआउट करना है कि अगर उसके घर में कोई हैवी लॉस हो गया, कोई भी इमरजेंसी आ गई तो वी शुड नॉट एक्ट एज एडिमेंसी क्राउड. वी शुड हेल्प इन अ इमोशनल वे. बिहेवियर पैटर्न बच्चे का और हमारा. एंड लास्ट इज द कि हमारी मॉरल उस बच्चे के क्या रखनी है. बच्चा हम ही को देख के क्या करेगा, आगे बढ़ेगा. शेफी को पता नेक्स्ट वन सर चलिए. Next, how to turn an everyday interaction into a powerful interaction. एक होता है हमारा जनरल इंटरेक्शन बच्चों के साथ, एक होता है बच्चे के दिमाग पे अपनी छवि छोड़ देना. One we called it as a powerful interaction. Yes, yes, she is my teacher. With a powerful interaction. पहला step 1 is what? Be present. You have to be present into the class. You have to give your presentable way around in the class. Second is what? Your connectivity with the student, and your connectivity should be into a positive environment. Third is what? Extend the learning. Learning should not be conceptual, it should not be content based. You need to extend your learning. अगर मैं बच्चे को बता रही हूँ this is a triangle, it is a square, लेकिन मैं ट्राइंगल और स्क्वायर से आगे बढ़ के उसको ट्राइंगल और स्क्वायर के बारे में बता दूंगी तो क्या होगा, दोनों वेज में लर्निंग जो होगी इट विल बी एक्सटेंड. कम टू द नेक्स्ट वन सर. बस ओके. हाउ यू कैन हैव अ ग्रेट ईट टू बी अ हैप्पियर लिविंग. इट इज अ ग्रेट ड्रीम. ग्रेट ड्रीम है. सबसे पहला मेरा क्या है, गिविंग. थैंक्स गिविंग, ठीक है. फिर है रिलेटिंग, योर रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज व्हाट? एक्सरसाइजिंग. एक्सरसाइजिंग मीन्स इफ आई एम अ टीचर, आई एम गिविंग समथिंग, वी शुड हैव एन एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. नेक्स्ट इज एप्रिशिएटिंग. वी शुड रादर देन हैरेसिंग एनीबॉडी, वी शुड एप्रिशिएट देम. जैसे अभी मैम की बात हुई थी कि मैं हूँ, मैंने काम नहीं करा, मैम मुझे ले गई, काम कराया, मुझे अप्रिशिएट करा, मैंने कॉलर ऊपर करके मैं क्लास में गई. आई एम द फेवरेट टीचर ऑफ रंजिता मैडम. फिर उसके बाद क्या हुआ, आई एम ऑलवेज द फर्स्ट चाइल्ड इन द क्लास टू ब्रिंग द वर्क डन व्हाटएवर शी हैज असाइन्ड फॉर मी. नेक्स्ट इज व्हाट? ट्राइंग आउट. कहते हैं ना सक्सेस उनको मिलती है, इट इज नॉट एन ईजी टास्क. कोशिश वही करते रिपीटेडली जो फेल होते जाते, ट्राई करते जाओ, है ना. तो यू नीड टू ट्राई आउट. ट्राइंग आउट उस बच्चे के साथ या उस क्लास के साथ आप ट्राई आउट करिए कि जब आप उस क्लास में ऐसा न्यू टीचर भी जा रहे हो या नए सब्जेक्ट को लेकर जा रहे हो, यू हैव टू ट्राई आउट हाउ यू कैन मेक दैट क्लास इंटरैक्टिव एंड हैप्पी. नेक्स्ट इज डायरेक्शन. आपको ये भी डायरेक्शन देखना है कि आप किस डायरेक्शन में अपनी क्लास को लेके जाओ. कभी कभी ये होता है कि हम अपनी क्लास को इतना अच्छा पढ़ा देते हैं या इतनी अच्छी डायरेक्टिंग देते हैं कि हमारे बच्चे जो होते हैं नेशनल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स और जोनल लेवल्स में भी कॉम्पिटिशन में क्या कर देते हैं, अपने आप को ले आते हैं. नेक्स्ट इज रीसाइलेंसिंग. रीसाइलेंसिंग मतलब क्या है? रीसाइलेंसिंग ये तो नया वर्ड है. रीसाइलेंसिंग क्या है? रीसाइलेंसिंग comes up to the point of patience. हमें कभी कभी अपने कुछ ऐसे मैटर्स में क्या होना चाहिए, थिंक करना चाहिए, साइलेंट अराउंड होना चाहिए कि हम उस बच्चे को सुना ही नहीं रहे, मतलब सुना रहे हैं, डूइंग एन आर्गुमेंट विद द स्टूडेंट. बच्चा बोल रहा है, हमको कर रहा है, उसने एक बोला, हमने उसको 10 बोला, फिर एक बोला, हमने 10 बोला. सो वी नीड टू फोकस अराउंड, वी नीड टू हैव अ पेशेंस, वी नीड टू हैव अ पॉइंट ऑफ साइलेंस ऑन टू आवर वोकल्स, कि हम ये तो देख सकें कि ऐसा क्या है कि बच्चा भी जो मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि क्यों कर रहा है, क्या पॉइंट है कि वो बच्चा क्या चीज़ को सफर कर रहा है. नेक्स्ट इज इमोशंस. एवरीबडी नोज कि हमें बच्चों के साथ एक इमोशनल बिहेवियर भी रखना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस. वी शुड एक्सेप्ट. कभी कभी हम भी क्लास में जाते हैं, हम पढ़ा देते हैं, कभी कभी होता है बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट. मेरे साथ भी हो जाता है कभी कि बच्चा फिर बोलता है मैम हमने तो ये पढ़ा, ये गलत है, ये आपने जो पढ़ाया ये गलत है कि नहीं? अब हम लोग भी एकदम हो जाते हैं, अरे यार गलत पढ़ा दिया, और इतने बच्चों के सामने पढ़ा दिया, और वो बच्चा सबके सामने खड़े होकर कर रहा है, बोल रहा है, इंडिकेटिंग कर रहा है
तो हमें कभी कभी ओके एक्सेप्ट करके हम उसको क्या करें, हमको वहीं पर रुकना नहीं है, हमको फिर उस चीज को लेकर आके क्लास में पूरे धड़ाके से बोर्ड पे करके। लास्ट इज मीनिंगफुल। क्या मीनिंग है, हम कैसे अपने बच्चे के लिए मीनिंगफुल हो सकते हैं कि कल को वो बच्चा बोले कि हाँ शी वॉज माई टीचर, शी इज माई टीचर, है ना। तो हमें एक मीनिंगफुल एटीट्यूड भी रखना है, अपने आप को मीनिंगफुल बनाना है। कम टू द नेक्स्ट वन, सब प्लीज जरूर। ओके, 7 स्ट्रैटेजीज टू कनेक्टिंग। हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। पहला है स्लो डाउन, स्टे इन द मोमेंट। स्लो डाउन, स्टे इन द मोमेंट का मतलब ये है कि हमारी क्लास 40 स्टूडेंट्स की होती है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 40 स्टूडेंट्स आर ऑल द ब्रिलियंट वंस। आई नीड टू स्लो डाउन इन माय स्ट्रैटेजीज फर्दर आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, कीप लर्निंग अबाउट चिल्ड्रन। व्हेन आई एम देयर इन द क्लास, every student is not same. If all the fingers are different, so all the students are also different in the class. We should learn about the student also. कि अगर मेरा 40 स्टूडेंट है तो 40 स्टूडेंट में से I should know about 30 to 32 स्टूडेंट्स कि क्या है, क्योंकि बाकी जो 8 स्टूडेंट होते हैं ब्रिलियंट है ना। नेक्स्ट इज लिसन टू द चिल्ड्रन। वी शुड लिसन टू द चिल्ड्रन। ऐसा नहीं कि हम क्लास में गए या हम बच्चे से जो है अपना बोले जा रहे हैं, बट वी आर नॉट रेडी टू लिसन। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज योर इंट्रैक्शंस। कभी कभी बच्चा होता है जो नहीं हो पा रहा सही, तो बीइंग अ टीचर मैं सोचती हूँ कि उसको पर्सनलाइज भी उसको क्या करूँ, मैं उसको काउंसल करूँ। नेक्स्ट इज शो रिस्पेक्ट। नेवर disrespect or dishonor a student into a class, as we are giving, as we are into a respectful way around, so they are also good. तो इसमें एक वर्ड आता है गिव रिस्पेक्ट एंड टेक केयर। बच्चा आप विंग में जा रहे हैं, बच्चा आपको कई बार आपको विश करेगा। अब साक्षी मैम जा रही, साक्षी मैम के पीछे मैं जा रही हूँ उस विंग में, सबने कहा गुड मॉर्निंग साक्षी मैम, गुड मॉर्निंग साक्षी मैम। पीछे प्रिंसिपल मैम आ रही तो प्रिंसिपल तो उसने क्या करा, विश नहीं करा। क्यों नहीं करा, मुझे विश क्यों नहीं करा, साक्षी मैम को क्यों करा? Because Sakshi ma'am, when there in the class, she is what in a respectful way with the student also. Okay, principal, मैं हूँ, मैं को फायर करती रहती। तो बच्चा सबसे पहले उसको करेगा जो उसके साथ क्या है, enhance। Last is नहीं, second class guide children's behavior। वही मैंने आपको बताया, behavior उसका अगर पैटर्न में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो क्लास में भी डिस्ट्रैक्शन कर रहा है। होता नहीं है कि टीचर पढ़ा रहा है तो पीछे से किसी ने चोटी काट दी या कुछ कर दिया या कुछ कर दिया, तो उस चीज़ को भी हमें चिल्ड्रन के बिहेवियर को देखना है और उसको गाइड करना है। एंड कीप ट्रस्ट। मैंने आपको बोला कनेक्टिविटी विल ब्रिंग अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विल ब्रिंग अ ट्रस्ट, एंड दिस विल गिव यू अ नेक्स्ट वन। आई गेस दिस विल बी द लास्ट वन। Yes, this is the last one. ठीक है, let's come up to the last one. ये वाला पेपर निकाल लीजिए। Take out this paper. Everyone. This is not for the class. This is not for the class. ठीक है, आपको यहाँ पे 2 चीजें मिली है। एक वर्ड क्या लिखा है और दूसरा क्या है, चलिए आज का सिनारियो देखते हैं। यहाँ पे लिखिए, आज आप स्कूल आए, स्कूल में ऐसा क्या आपका रहा जिसकी वजह से आप खुश हैं, और ऐसी क्या चीज रही जिसकी वजह से आप खुश नहीं। खुश यही है कि मैंने सेशन पढ़ा दिया। चलिए लिखिए, ऐसा क्या है जो जिसकी वजह से आप खुश हैं, और ऐसा क्या है व्हाट is there today in the school that made you a sound of unhappiness? Thank you है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, मेरी एक जैसे मेरी मैम से भी बात हो रही थी। I had a Russian nun when I was there in my SNR। आपको पता है उसमें जिस टाइम में मैं पढ़ती थी वहाँ पे एंग्लोस थे, है ना।
हैप्पी इज नाउ। समझ गए ना? जो अभी का समय है वो ही है, इट इज टू बी हैप्पी एंड द वे टू बी हैप्पी इज हियर। मीन्स मेरी यही एक क्लास है, जिस क्लास में मैं एंटर हुई हूँ तो वो ही क्लास में मुझे अपने को और अपने बच्चे को क्या करना है, हैप्पी। एंड द वे टू बी हैप्पी, किस तरीके से मैं उसको हैप्पी करूंगी, एंड द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। समवन हैप्पी, आप अकेले हैप्पी हो तो अकेला कोई भी इंसान इस दुनिया में हैप्पी नहीं है। आप हैप्पी तब होगे जब दूसरा आपकी वजह से खुश होगा। एंड टू हैव अ लिटिल हेवन, स्वर्ग। अगर आपने किसी को खुश करा तो आपको भी खुशी होगी, और खुशी में हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू कृष्ण जी, उन्होंने क्षेत्र के उसमें बताया था आपका जो कर्म है, नथिंग इज देयर, योर कर्म मींस योर वर्क will plays an important, and this is only the heaven where you have to pay for your rewards, है ना? तो ये आपका क्लास, आपकी दुनिया, आपस का हमारा इंटरेक्शन, आंडा पब्लिक स्कूल, स्टाफ, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स, को स्टाफ एंड on the top most above to the management students, हम सब यहीं पे हैं। हम सबको खुश रहना है, एक दूसरे का खुशी का कारण बनना है, और अगर कोई खुश नहीं है या कोई प्रॉब्लमैटिक है तो हमें पीछे भी नहीं हटना है, पीछे भी नहीं हटना है, पर